हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का जो है हिस्ट्री का चैप्टर, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 9, द एस्टेब्लिशमेंट एंड द एक्सप्लेनेशंस ऑफ द दिल्ली सुल्तान। देयर इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट। कहते हैं दिल्ली सल्तनत की स्थापना और उसके विस्तार जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, और ये इंपॉर्टेंट हर एक क्लास के बच्चों के इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि हम इसमें गुलाम वंश से लेके जो है अकबर तक की स्टोरी की जानने की हम कोशिश करेंगे। खलजी वंश की स्थापना से लेके जो है सारे जो है उनके चुनौतियों का भी हम यहाँ पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, और ये हर एक क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन आपको पता है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू न जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। अब चलिए देखते हैं खलजी वंश की क्या हिस्ट्री है। The most important topic discussing here, the Khalji. The Khalji is here AD 1290 to 1320. There is the most important period time. The 30 years is the most important. The Jalaluddin Khalji is the first empire, the AD 1290 to 1296. The Khalji led to the foundation of the Khalji century. He is said that there is a throne and there is a age of 70 years. The 70 years is the most important time. There is a thought that Jalaluddin returning to the earlier nobility in the administrations, but the rise of Khalji is a power indeed to menopause of the nobility of the slave to high office. Jalaluddin ruled only for a short span of 6 years only. There is a most important time, short span of 6 years. He tried to the mitigate some of the harsh aspect of the Balban as a rule. He was the first ruler of the Delhi Sultan to be clearly put forward the view that the state should be based on the willing support of the governed, and that assigned to the large majority of people in India were Hindus. Their state of India could not be a truly Islamic state. Jalaluddin tried to win to the goodwill of the nobility by a policy of tolerance. He awarded is a harsh punishment even to those who is revolted against him. He not only forgave them but at the time even rewarded them to win their support. However, many people, including his supporters, is considered him to be a big sultan. Jalaluddin as a policy was reversed by the Jalaluddin Khalji, who awarded is a drastic punishment to all this who is dare to oppose him. The next Sultan here, Alauddin Khalji. Jalaluddin Khalji, after the Alauddin Khalji, their time period of AD 1296 to 1300 is a 16. There is a period time is the most important 20 years. Alauddin Khalji was Alauddin's ambition, Nifel, and the son-in-law. He is helped his uncle in the struggle for power and the appointment to the Amir-e-Tulk, the master of the ceremonies. Alauddin has two victories is expended during the reign of Jalaluddin's. After the first expedition of Bihalasa is a Vidasya is AD 1292. He was a gift to the Ikata of the Awadh. He added to that of the Kara. He was also his appointment to the Arizik A. Mulalik, Minister of the War. In AD 1294, he led to the first Turkish expedition of Sultana India as a priority to the Devagiris.
His successful expedition proved that Alauddin was unable a military commander and absent of the organizer. In July AD 1296, he murdered his uncle and father-in-law is Alauddin Khalji and covered to himself as a sultan. That is the most important. Alauddin decided to receive a Balban as a policy of rather to the governance. He decided to the curb there is a power of the noble interference of the ulema. Is a master of the state. He also faced a few rebellion and the succession during the earlier year of his rules. According to Verani, the author of Turkish Efras Shahi, Alauddin felt that there is a free where is the four reason for this is a revolving of first year the infancy of the spicy system and second year the general practice of the use of wine and third is the social intercourse among the noble and intermarriage between them and fourth is the success to the wealth in the possession of the content noble. There is a more important thing here. In order to prevent the occurrence of this is rebellings and Alauddin formulated his content regulation and implemented them. The family that had been to the enjoying free land to the support themselves should pay a land tax for their holding. The curbed the excess of the wealth owned by the some people. The Sultan recognized the spicy system and took the measure to the make it is a more effective. The use are required and the is occidental and prohibited, and the noble where is ordered to not to have a social gathering or intermarriage without the permission. Alauddin established a hux up permanent standing army of satisfy is the ambition of conquest and to protect the community of the Mongol invasion. That is the most important. And the important fact here, the market regulation of Alauddin Khalji. Alauddin is measuring to the control the market were one of the most important policy. And imitate of Sir Alauddin want to the maintain a large army. He therefore lowered and fixed the price of the commodities of daily use. To control the price, Alauddin set up the three different markets from different commodities in Delhi. This market is where to the grain market, mandi, cloth market, saris odal, and the market of the horse, slave, and cattle, etc. They ensure a implementation of Alauddin appointment the superintendent of the Sana'i Mohammad Mandi, who was assisted by their intelligence officer. Apart from the Sana'i Mandis, Alauddin received daily report of the market from two other independent sources. The Bahari intelligence officer and the Munhayas is scared to the spicy and the violation of the Sultan as order resulting in the harsh punishment of including expansion from the capital imposition of fine, imprisonment or mutations. Control of prices of the horse was very important for the Sultan because without the supply of good horse at the reasonable price to army, the efficiency of the army could not be ensured. Low price is the horse market were ensured by the putting a stop to the purchase of horse by horse is the dealers and the brokers is the dalal in the daily market. The next expansion of the Delhi Sultan under the Alauddin Khalji, the territory expansion of the Delhi Sultan beyond to the north India was the most important achievement. Alauddin is the first began his territorial conquest with the companies against the Gujarat. Alauddin was motivated by his desire to establish a vast empire and obtain the wealth of Gujarat. The riches of the Gujarat where is a pay from his the future a conquest and here a seaport was to ensure a regular supply of the arms horse for his army. In AD 1299, an army under two Alauddins, not to the Generali Ul Khan and the Nasrat Khan is a marched as against Gujarat and Rai Karan in the rulers of Gujarat fell their attempt is a temple of Somnath was captured. A emergence of the Bhutals and their collected. Even to wealth of Musliman merchants were not spared. Many slaves were captured. Malik Khalifa was one among them, and who later became to the trusted a commander of the Khalji force and led to the invasion in South India. The Gujarat now passed under to control of
Delhi. After the annexation of Gujarat, Alauddin turned in the attention to Rajasthan. Ranthambore was the fort target. Ranthambore was captured to be a strongest fort of Rajasthan, had to be earlier defeat Jalauddin Khalji. The capture of Ranthambore was a necessity to break the power and morals of Rajput. The ultimately cause attack was the rulers of Ranthambore is Hamaro Dev is give to the shelter to two rebellions of Mongol soldier and refused to the hand and over them to the Khalji rulers. Hence an offensive and the launched against Ranthambore to be began with the Khalji force suffering as a loss. Nusrat Khan, even to lose his life, finally Alauddin himself had to come on the battlefield. In AD 1301 to the forted as a field to the Alauddin. In AD 1303, Alauddin is descendant of the Tutors and another power state of Rajputana. According to some scholars, Alauddin attacked the Tutors is because their coveted is a Padamini. There is a beautiful queen of the Rajya, Ratan Singh. However, many scholars do not be agree with his legend as this is the first mentioned by the Jayasi in the Padmavat. The more than 200 years later, according to Amir Khusrau, is the Sultan ordered to the general marquess of the civil population. Chittor and was the renamed to the Khizabad after the name of Sultan as a son Khirz Khan. Alauddin is however returned to back quickly to the Delhi as a Mongol army was advancing toward to Delhi. In AD 1305, Khalji army under N-ul Malik captured the Malwa. The other states such as Ujjain, Mandul, Dhor and the Chanderi were also captured. After the conquest of their Malwa, Alauddin sent to the Malik Kafur to be a south and himself attacked the Sivans and the ruler of Sivans, Raja Sital Dev, defended the fort various but as ultimately is defeated. In AD 1311, another Rajput kingdom Johar was also is captured. Thus, the AD 1311 Alauddin had completely the conquest of the large part of Rajputana and become the master of North India. The next era, Deccan and South India. The imperialists of the ambition of Alauddin were not satisfied with the conquest of their northern. He was determined to be inquire of south as well. The wealth of the southern kingdom attracted him. His expedition to be south were sent under Malik Kafur and the trusted is the commander of Alauddin who held to the office of Naab. In AD 1306 to the J7 is Alauddin's plan to the fresh campaigns of Deccan. His first target was Rai Karan, the earlier ruler of Gujarat, who had now occupied the Bangalana and defeated him. The second expedition was against Rai Ramchandra, the ruler of the Danogir, and who had earlier promised to the pay of the tribute of the Sultan but did not pay. Ramchandra is surrounded after little resistance of Malik Kafur and his treated to the honorable. There he was a keep a guest as the Alauddin courts and was given to the gift of 1 lakh tongues and the little of the Ryan. He was also given a district of Gujarat and one of his a daughter was married to the Alauddin. Alauddin showed to the generosity of to about to Ramchandra because he was want to have a Ramchandra as a allow for the accompanies in a south. After AD 1309, Malik Kafur was deputed to the launch of compass in South India, and this is the fourth expedition was against the Pratap Rudradeva and the Varmal of the Telangana is area. This and to the latest is a last traded from to many months and the come to and in went to the right agreed to the part with their treasure and pay a tribute of to Sultan. The second is the compass was against to the Dwar, Manduras and the Malwar is a modern is a Karnataka and Tamil Nadu. The ruler was Dwar is a Samundra
and Veer Valyal is a third, is realized that is a defeating a Malik Kafur is would not be an easy task. Hence, they agreed to pay a tribute of Sultan without any distance in a case of Malabar Pandya kingdom. A great decisive battle could not be take place. However, Kafur is a pondered as much as he could be, including a number of well temples such as that of Sadhavaram, and according to Amir Khusro's scarf it returned with the 512 elephant, 7,000 horse and 500 mans of the precious stone. The Sultan ordered the Malik is a kafir for the appointing him to the Naab Malik of the empire. Alauddin is a force under to Malik Kafir continued to maintain a control over Deccan kingdom. The following the death of Alauddin is AD 1316. The Sultan, Delhi Sultan was pledged into the convention. Malik is a calf who is set on the throne for the few days, want to be deposed by the Qutuddin is a Mubarak Shah, and during this period, revelations of broke out of the Devagir, and but there is a harshly is a surprised Qutuddin Mubarak Shah was a soon is a murdered, and the Khusru is ascended of throne. However, the two did not be last long, and the some justified officer led to the Gyanuddin is a Tulk and the defeated and kill him in a battle. This only 4 years after the death of the Alauddin Khalji, and the such come to the end and the power passed into the hand of the Tullak. The Tullak is the most important of here. यहाँ पर हम बात जैसे करने जा रहे हैं खलजी वंश। देखिए गुलाम वंश की जब समाप्ति हुई तो खलजी वंश का जो है दबदबा यहाँ पर देखने को मिला। कहते हैं खलजी वंश के अगर हम शासनकाल की बात करें तो 1290 से लेके 1320 ईस्वी के मध्य माना गया है। और खलजी वंश काफ़ी इंपॉर्टेंट था। आपको पता है जलालुद्दीन खलजी ने खलजी वंश की नींव डाली थी, यानी जलालुद्दीन खलजी जो था प्रथम शासक था खलजी वंश का, और इसी ने ही खलजी वंश का यहाँ नींव भी डाली। जलालुद्दीन जो था 70 वर्ष की आयु में गद्दी पे बैठा। कहते हैं जिस समय वो गद्दी पे बैठा उसकी आयु बहुत काफ़ी थी, 70 वर्ष की आयु कम नहीं होती है। हालांकि जलालुद्दीन ने अपने प्रशासन में जो है पूर्व जो है कुलीनों को जो है बरकरार रखा था, किंतु जो है खिलाफजी के उदय से महत्वपूर्ण कार्यालय में जो है कुलीन वर्ग में जो है गुलामों के वजस्व को कम कर दिया। जलालुद्दीन का शासन मात्र 6 वर्ष की रहा और उसने बलबन द्वारा अपनाए गए कड़े नियमों को भी ढीला कर दिया। वह जो है सल्तनत का पहला ऐसा सुल्तान था जिसने विचार दिया कि शासन जनता के समर्थन से चलाना चाहिए, तो क्योंकि भारत में हिंदू आबादी अधिक है, अंततः जो है सच्चा इस्लामिक राज्य नहीं हो सकता। तो ये बात उसने बहुत विशेष जोर दिया। जलालुद्दीन खलजी ने जो है उदारता की नीति अपनाकर जो है विजात वर्ग का समर्थन हासिल किया और उसने कड़े दंड वाली नीति को त्याग दिया, यानी जो बलबन ने शुरू किया था लो नीति उसको इसने त्याग दिया, जिसकी वजह से काफ़ी जो है बिगड़ने के कगार पे आया। यहाँ तक कि उन्हें भी कड़ा दंड नहीं दिया। जिन्होंने उसके खिलाफ विद्रोह भी किया था उसने न सिर्फ उन्हें क्षमादान दिया बल्कि उसका विश्वास जीतने के लिए सम्मानित भी किया गया। हालांकि उसे कई समर्थकों ने उसे कमज़ोर सुल्तान की संज्ञा भी दी थी। जलालुद्दीन खिलजी की भी सभी नीतियाँ अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जो है पलट दी गई, जिससे अपना विरोध करने वालों को कड़ा दंड देने का प्रावधान किया गया। तो कहते हैं जलालुद्दीन खलजी का जो है उदार जाता के जो रूप में देखा गया, लेकिन अलाउद्दीन खलजी ने इस सब बातों को जो है उलट दिया। यानी देखते हैं अलाउद्दीन खलजी किस प्रकार जो है आगे इस सल्तनत को आगे बढ़ाया। अलाउद्दीन खलजी जिसका समय काल 1296 से लेके 1316 ईस्वी में था, यानी 20 साल के समय काल में इसने बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाए। देखा जाए तो अलाउद्दीन खलजी राजगद्दी पर कैसे प्राप्त किया और जलालुद्दीन का वो कौन था, सबसे बड़ा प्रश्न तो यही उठता है। अगर देखा जाए तो अलाउद्दीन खलजी जलालुद्दीन खलजी का महत्वाकांक्षी भतीजा और दामाद था। अब कन्फ्यूज़न ये होगा कि भतीजा था कि दामाद था, तो आप समझ सकते हो इस बात को। उसने अपने चाचा की मदद जो है सत्ता पाने में की थी। अंततः अमीर तुगलक उत्सव का शहंशाह था के रूप में नियुक्त भी हुआ था, यानी अमीर तुजुक यानी उत्सवों का शहंशाह के रूप में उसको जो है जलालुद्दीन खलजी के शासनकाल में नियुक्त भी किया गया था। जलालुद्दीन के शासनकाल के जो है अलाउद्दीन के 2 प्रमुख जीत थी। सन 1292 में विलास
विद्रोह का जो है अधीन करने के उपरांत कारा के साथ साथ उसने अवध का जो इकाता प्रदान किया गया था और वो अरीजी ए जो है मुमालिक यानी युद्ध मंत्री के रूप में नियुक्त भी हुआ था और सन 1294 में पहली बार दक्षिण की ओर तुर्की साम्राज्य का विस्तार भी करने में सफल हुआ था तथा देवगिरी को अपने अधीन भी करने में सफलता प्राप्त किया था। और इस सफल अभियानों ने साबित कर दिया कि अलाउद्दीन खलजी एक समक्ष सेनापति और कुशल योजनाकार था। जुलाई जो है 1296 में उसने अपने चाचा ससुर जो है जलालुद्दीन खलजी की हत्या कर दी तथा स्वयं ही गद्दी पे बैठा, यानी उसने अपने ससुर या चाचा को जो है हत्या करके राजगद्दी को प्राप्त किया। अलाउद्दीन ने बलबन के शासन की निष्ठुरता नीति पुण्य लाने का निर्णय लिया और उसने कुलीन वर्ग की स्वतंत्रता छीन ली। शासन में जो है उलेमाओं का हस्तक्षेप बंद कर दिया और उसने अपने शासनकाल के आरंभिक वर्षों में कई विद्रोह का भी सामना किया। तारीख फिरोज शाही के लेख वर्णी के अनुसार अलाउद्दीन खलजी ने महसूस किया कि इस विद्रोह का 4 मुख्य कारण थे और ये 4 मुख्य कारण जो हमें मिलता है, किसमें मिलता है? उलेमा का हस्तक्षेप। किसमें मिलता है हमें? तारीख फिरोज शाही, जिसका लेखक कौन था? वर्णी था। ये याद रखना है आपको, तारीख फिरोज शाही जो कि वर्णी द्वारा चरित्र था। अब इसमें विद्रोह के 4 मुख्य कारण क्या थे, चलिए देखते हैं। गुप्तचर व्यवस्था की अयोग्यता, सबसे बड़ा कारण यही था कि गुप्तचर अवस्था की अयोग्यता, शराब का आम उपयोग हो जाना, कुलीनों के मध्य सामाजिक व्यवहार और आपस में विवाह संबंध स्थापित कराना, कुछ कुलीनों के पास अत्यधिक संपत्ति आ जाना, तो ये सब कारण थे। इन विद्रोह की कड़ी को तोड़ने के लिए अलाउद्दीन ने कुछ नियम बनाए, उन्हें लागू किया। वो नियम क्या थे? वो परिवार के जिन्हें जो है मुफ्त में जमीन मिली थी वो अपने स्वामित्व वाली वस्तुओं के लिए करों का भुगतान करेंगे। सुल्तान ने गुप्तचर व्यवस्था को पुनः संगठित किया, उसे और प्रभावित बनाने के लिए समुचित उपाय भी किए। शराब का प्रयोग प्रतिबंधित कर दिया तथा को शासन की अनुमति के बगैर अभिजात वर्ग के आपस में सामाजिक समारोह तथा शादी विवाह पर रोक लगा दी गई। तो ये सारे कदम जो थे कठोर थे, जो पहले छूट में दे दिए गए थे जो है जलालुद्दीन के समय काल में, लेकिन अलाउद्दीन ने इस सबको जो है बदल के रख दिया। कहते हैं अलाउद्दीन खलजी ने इस इलाके जितने में महत्वाकांक्षा और मंगोर के देश की रक्षा के लिए एक विशाल अस्थायी सेना की स्थापना भी किया। कहते हैं एक फैक्ट है जिसके हम विचार करना। अलाउद्दीन खलजी का बाजार सुधार। देखिए बाजार सुधार होना कई मायने में इंपॉर्टेंट भी रहता है कोई भी शासन के लिए। बाजार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए अलाउद्दीन द्वारा किए गए उपाय सबसे महत्वपूर्ण नीतियों में से एक माना जाता है, क्योंकि अलाउद्दीन एक विशाल सेना रखना चाहता था। अंततः उसे आवश्यक वस्तुओं के मूल्य कम किए तथा निर्धारित भी किए। मूल्य को नियंत्रण करने के लिए अलाउद्दीन ने विभिन्न वस्तुओं के विभिन्न बाजार बनाए। वो अनाज बाजार को मंडी बनाई और कपड़ा बाजार के लिए सराय आदिल बनाया तथा घोड़े, जानवरों और गुलामों का बाजार भी उसने स्थापित किया। अलाउद्दीन ने एक जो है पर्यवेक्षक सहान ए मंडी के नियुक्ति भी किया, जिसके अधीन एक सूचना अधिकारी होता था। सहाना ए मंडी के अतिरिक्त जो है अलाउद्दीन बरीद ने जो है सूचना अधिकारी तथा मुहिम गुप्तचर के द्वारा भी बाजार की जो है दैनिक जानकारी पाता था। सुल्तान के आदर्शों का उल्लंघन का अर्थ होता था कि करे से करे दंड, जैसे राजधानी से निष्कासन होना, आर्थिक दंड देना, जेल अथवा अंग भंग। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इसने जो है अपने समय में दंड का प्रावधान किया था। घोड़े के मूल्य का नियंत्रण सुल्तान के लिए बहुत आवश्यक था, क्योंकि उसे अच्छे घोड़े की आपूर्ति के बिना सेना की कार्यकुशलता का सुनिश्चित नहीं हो सकती थी। दिल्ली बाजार में घोड़े के विक्रेताओं तथा दलालों द्वारा घोड़ों की खरीदारी से उनके मूल्य जो है निश्चित किए गए। दिल्ली सल्तनत का विस्तार। देखिए अलाउद्दीन खलजी के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत की सीमाएं उत्तर भारत को पार कर अपनी सर्वोच्च ऊंचाई तक पहुंच गया। अलाउद्दीन ने क्षेत्रीय विस्तार अभियान की शुरुआत गुजरात के खिलाफ की और अलाउद्दीन खलजी अपने साम्राज्य विस्तार के साथ साथ गुजरात की विशाल संपदा के प्रति भी काफ़ी आकर्षित था। गुजरात के दौलत से उसकी जो है आगामी अभियान में मदद भी होती थी तथा उसके जो है समुद्र तट से उसकी सेना के लिए अरबी घोड़े की आपूर्ति सुनिश्चित भी हो जाती थी। सन 1299 में अलाउद्दीन के 2 प्रमुख सेनापति अलुग खान तथा नुसरत खान ने गुजरात की ओर रुख किया। गुजरात का जो है शासक राय करण जान बचाकर भाग गया तथा सोमनाथ मंदिर जीत लिया।
यानी देखा जाए तो सोमनाथ मंदिर का जितना सबसे बड़ी जो है प्रशंसा में से एक माना जा सकता है। विशाल जो है मात्रा में जो है लूट का माल इकट्ठा किया गया और यहाँ तक कि संपन्न मुस्लिम व्यापारी भी नहीं बख्शे गए। कई जो है गुलाम बंदी बनाए गए। उनमें से एक मलिक काफूर था जो बाद में जाकर खिलजी सेना का मुख्य सेनापति भी बना तथा अपने दक्षिण अभियान को संचालन भी किया। गुजरात अब दिल्ली सल्तनत का ही हिस्सा था। गुजरात पर अधिकार स्थापित करने के उपरांत अलाउद्दीन ने अब अपना ध्यान राजस्थान पर केंद्रित किया। उसका पहला लक्ष्य रणभोर था। रणभोर का किला राजस्थान का सबसे प्रतिष्ठित किला माना जाता था, यानी रणभोर का किला जो था सबसे प्रतिष्ठित जो है किला माना जाता था और इसको जीतना उसकी कामयाबी का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता तथा वह पूर्व में जलालुद्दीन खिलजी की चुनौती दे चुका था। राजपूतों का जो है नैतिक मनोबल तोड़ने के लिए रणभोर को जीतना अत्यंत ही आवश्यक था। रणभोर पर आक्रमण करने का तत्कालीन कारण राजपूत शासक हरिदेव द्वारा 2 विद्रोही मंगोल सैनिकों को शरण लेना था तथा उसकी जो है खिलजी शासक के देने से इनकार कर दिया था। अंततः रणभोर के खिलाफ मोर्चा खोला गया और आरंभ में खिलजी सेना के नुकसान हुआ, यहाँ तक कि नुसरत खान को अपनी जान गंवानी पड़ी। अंततः अलाउद्दीन खिलजी को युद्ध के मैदान में खुद आना पड़ा तथा सन 1301 में अलाउद्दीन ने किले को जीत लिया। कहते हैं सन 1303 में अलाउद्दीन ने एक अन्य शक्तिशाली प्रदेश जो है चित्तौड़ को जीता। कुछ विद्वानों के अनुसार अलाउद्दीन ने राजा रतन सिंह को जो है सुंदर पत्नी पद्मावती के प्रति आकर्षित होकर चित्तौड़ पर हमला किया था। हालांकि कुछ इतिहासकार इस कथन को मानने से इनकार करते हैं क्योंकि इस गाथा का वर्णन जैसी द्वारा 2000 वर्ष बाद पद्मावत में पहली बार किया गया था और अमीर खुसरो को अनुसार सुल्तान ने आम जनता के कत्लेआम की संज्ञा दी थी। अपने पुत्र जो है खिजर खान के नाम पर उसने तिंजौर का नाम खिजराबाद कर दिया था। अलाउद्दीन के दिल्ली वापस आना पड़ा क्योंकि मंगोल सेना दिल्ली की ओर कुछ कर रही थी। सन 1305 में एन उल मुल्क के नेतृत्व में खिलजी सेना के मलाब पर अधिकार स्थापित किया और अन्य राज्य जैसे उज्जैन, मंडूधर और चंदेरी भी जीत लिया गया। मलाब विजय के उपरांत अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को दक्षिण में भेजा और स्वयं सिवाना पर आक्रमण कर दिया। जिताना के शासक राजा जो शीतल देव ने दुर्ग की जो है वीरतापूर्वक रक्षा की किंतु अंत पराजित हुआ। सन 1311 में अन्य राजपूत प्रदेश जालौर भी सल्तनत का हिस्सा था और इस प्रकार 1311 तक अलाउद्दीन ने राजपूतों के सभी क्षेत्रों को जीत लिया तथा उत्तर भारत का जो है शहंशाह बन के बैठ गया। उसके पश्चात दक्कन तथा दक्षिण भारत। अलाउद्दीन के साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा उत्तर भारत पर अधिकार के साथ पूर्ण नहीं हुई। वह दक्षिण की जीतने के लिए भी कटिबद्ध था और दक्षिण भारत की संपत्ति ने उसे काफ़ी आकर्षित भी किया था। कहते धन के लिए आकर्षित होना एक स्वाभाविक बात है। दक्षिण में युद्ध के लिए अलाउद्दीन ने विश्वसनीय सेनापति मलिक काफूर के नेतृत्व में फौज को भेजा गया जो नायाब का कार्यभार संभाला था। सन 1306 से लेकर 7 में अलाउद्दीन ने दक्कन में पहला अभियान आरंभ किया और उसका पहला निशाना गुजरात का पूर्व शासक था, यानी रायकरण था, जो अब बलगाना का शासक था तथा खिलजी ने पराजित हुआ और उसका अगला निशाना देवगिरी का शासक रामचंद्र था, जिसने जो है पहले सुल्तान के राशि देने का वादा किया था किंतु कभी भी नहीं दी। रामचंद्र ने हल्के संघर्ष के उपरांत मलिक काफूर को समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया तथा उसके साथ सम्मानजनक व्यवहार हुआ। उसे गुजरात का एक जिला प्रदान किया गया तथा उसकी एक पुत्री का विवाह अलाउद्दीन से हुआ था। अलाउद्दीन ने रामचंद्र के प्रति जो है गर्मजोशी का परिचय दिया क्योंकि वह दक्षिण के अभियानों में रामचंद्र के साथी बनना चाहता था। सन 1309 के उपरांत मलिक काफूर ने दक्षिण भारत के खिलाफ अभियान पर रवाना हुआ और पहला आक्रमण तेलंगाना क्षेत्र में जो है बरगल के प्रशासक प्रताप रुद्रदेव के खिलाफ किया। घेराबंदी कई महीने तक चली तथा समाप्त भी हुई। तब प्रताप रुद्रदेव की सुल्तान को अपनी संपत्ति में हिस्सा देने तथा सुल्तान को शुल्क अदा करने का वादा भी किया। दूसरी अभियान द्वारा समुद्र तथा मलाबार यानी वर्तमान कर्नाटक तमिलनाडु के खिलाफ था। द्वारा समुद्र के शासक जो है वीर वल्लभ तिलक को समझने का पश्चात कि मलिक काफूर को
हराना असंभव है। बिना किसी संघर्ष के सुल्तान के शुल्क अदा करना स्वीकार कर लिया। और मतलब बाढ़ जो है पांड्य राज्य की यदि बात करें तो सीधा संघर्ष नहीं हो सका। हालांकि मलिक काफूर ने समृद्ध मंदिरों सहित बहुत ज़्यादा लूटपाट की, जिसमें जो है चिदम्बरम का मंदिर प्रमुख था। अमीर खुसरो के अनुसार काफूर 512 हाथियां और 7000 घोड़े तथा 500 मन बहुमूल्य पत्थरों के साथ लौटा था। सुल्तान ने मलिक के साम्राज्य का नायाब बनाकर पुरस्कृत भी किया था। मलिक के नेतृत्व में अलाउद्दीन की सेना में दक्कन प्रदेश में अपना नियंत्रण कायम रखा था। इसी बात को अगर हम मैप में समझें तो आप देख सकते हो कि मैप में जो है अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य निश्चित तौर पे पूरे भारत में था। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी था कि इसने काफ़ी क्षेत्रों को जो है अपने अधिकार में ले लिया था। जैसे कश्मीर के कुछ हिस्सा जो है नहीं उसने अपना सका, और पाकिस्तान का कुछ हिस्सों में उसने जो है अपना साम्राज्य का स्थापना नहीं कर सका, ठीक है। लेकिन उस भारत के हर एक क्षेत्र में जो है अपना उसने काफ़ी दबदबा बना रखा। कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने जो है पूरे भारत पे जो है अपना प्रभुता स्थापित करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी था ये टॉपिक जानने के लिए कि खिलजी वंश कैसे जो है आगे बुलंदी पे चला। आगे का टॉपिक और भी महत्वपूर्ण है तो उसको देखना मत भूलना। हम अगले टॉपिक में मिलेंगे। ओके दोस्तों, अपना ध्यान रखना, और ध्यान रखना इस बात की भी कि जितना हो सके इस वीडियो को दूसरे बच्चों तक पहुंचाने में आपने तिरपान एसएससी सेंटर का हेल्प करना है। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे से नंबर प्राप्त कीजिए। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज़ बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से तिरपान एसएससी सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप तिरपान लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा, ठीक है। जो आप गूगल पर सर्च करेंगे वो तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्ज़ाम खत्म हो जाने के मेरा क्या ज़रूरत है तिरपान एसएससी सेंटर से, ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। तिरपान एसएससी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्टों को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th +2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है तिरपान एसएससी सेंटर का फ़ायदा ही फ़ायदा है, ठीक है। अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊँगा जो आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। एग्ज़ाम के तौर पर मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फ़ायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूँगा, ठीक है दोस्तों। इसलिए सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। अपना ध्यान रखना, बाय।